بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کا اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ولی کی کہانی آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اس دلچسپ کرامات کہانی کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اس کا تعارف جو کہ مختصر ہے لازمی سنیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جن ولی کی کرامت کا یہ قصہ ہے ان کا مختصر تعارف آپ کو کراتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ادھر ادھر آباد ہوئی۔ اس خاندان کے بزرگ مخدوم محمد الحسینی گیلانی کے 4 بیٹے، پہلا عبد القادر ثانی سب سے بڑے، پھر سید عبداللہ ربانی، پھر سید مبارک خفانی اور چھوٹے کا نام سید محمد نورانی تھا۔ ان کی 7ویں پشت میں سید ظہور الحسن نامی بزرگ پیدا ہوئے۔ یہ بہت عبادت گزار اور نیک بندے تھے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ سے چھوٹے بھائی نے اپنے بیٹے سید احمد علی کا ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح سید احمد علی سید ظہور الحسن کے بیٹے بن گئے۔ سید احمد علی کا 4 ٹکے پر حال کھیلنا۔ اس خاندان کی عظمت، بزرگی اور علم نے اپنے گرد و پیش کو اپنے حلقۂ اثر میں لے لیا۔ دن گزرتے رہے، سید احمد علی جوان ہو گئے۔ ان کو بہترین تعلیم دلوائی گئی، تربیت بھی اچھی دی گئی تھی، لیکن معلوم نہیں کیوں سید احمد علی کو تمسخر میں بڑا مزہ آتا تھا۔ جہاں کہیں تقریب ہوتی یہ وہاں پہنچ جاتے اور تقریب والوں سے پوچھتے، میں حال کھیلتا ہوں، حال کھلواؤ گے؟ ان سے پوچھا گیا کہ حال کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ سید احمد علی نے قوالی میں حال کھیلنے والوں کی طرح متحرک ہو کر بتایا، یہ ہے حال کھیلنا۔ صاحب تقریب کو اس میں بڑا مزہ آیا، پوچھا، کیا تم یہ حال براتیوں کے سامنے کھیل سکتے ہو؟ سید احمد علی نے جواب دیا، کیوں براتیوں کے سامنے کیوں نہیں کھیل سکتا؟ میں حال کھیلنا جانتا ہوں تو سب کے سامنے بھی کھیل سکتا ہوں۔ صاحب تقریب نے حال کھیلنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا، میں حال کھیلوں گا تو اس کا معاوضہ دو گے؟ صاحب تقریب نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں اس کا معاوضہ بھی دوں گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس کا معاوضہ کیا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، صرف 4 سکے، اس سے زیادہ نہ کم، بالکل مناسب معاوضہ ہے یہ۔ صاحب تقریب نے براتیوں کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا، اس تقریب کی خوشی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے مہمانوں کی دل بستگی اور خوشی کے لیے کچھ کیا جائے۔ براتیوں میں سے اکثر نے آپ کو پہچان لیا اور آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، یہ خانوادہ تو بڑے پیر صاحب کا ہے۔ 4 ٹکے کا ذکر عام ہو گیا۔ لوگوں نے یہ خبر سید ظہور الحسن کو پہنچا دی اور کہا، آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ سید ظہور الحسن نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اس خبر سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ احمد علی کو تلاش کر کے گھر لائے اور پوچھا، آج کل تمہاری نشست و برخاست کن لوگوں میں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری کیا مشغولیات ہیں آج کل؟ احمد علی نے جواب دیا، ایسے لوگ کامیاب ہیں جن میں نشست و برخاست رکھوں۔ رہ گئی مشغلے کی بات تو میں آج کل 4 ٹکے لے کے حال کھیلتا ہوں۔ ظہور الحسن کو ان کی دلیری پر تعجب ہوا، پوچھا، حال کھیلتے ہو وہ بھی 4 ٹکے لے کر؟ تم نے اپنے خاندان اور بزرگوں کا نام ڈبو دیا، تم کو شرم آنی چاہیے۔ احمد علی نے پوچھا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ محنت کرتا ہوں اور اس کا معاوضہ لیتا ہوں، چوری چکاری تو نہیں کرتا۔ ظہور الحسن نے سختی سے منع کیا، لیکن اب تم ایسا نہیں کرو گے، میں اپنی اور اپنے خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ احمد علی نے جواب دیا، میں یہ جو کر رہا ہوں حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں۔ ظہور الحسن خاموش ہو گئے، لیکن دل کو اطمینان نہ ہوا۔ وہاں کسی دوسری تقریب میں بھی آپ کو بلوایا گیا، کیونکہ جن لوگوں نے ان کے حال کھیلنے کا منظر دیکھا تھا وہ ان سے بہت خوش ہوئے تھے۔ جو آدمی آپ کو بلوانے آیا تھا، آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے میں حال کھیلنے کے 4 ٹکے لیتا ہوں؟ آدمی نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، آپ چلیں تو صحیح، آپ کو 4 ٹکے مل جائیں گے۔ ظہور الحسن نے ان کو روکنا چاہا، مگر یہ نہیں رکے اور تقریب میں چلے گئے۔ آپ نے 4 ٹکے وصول کیے
اور बारातियों के सामने हाल खेलना शुरू किया और लोगों ने बड़ा लुत्फ उठाया और आपके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। शिकायत करने वालों ने ये खबरें भी आपके ताया ज़हुरुल हसन को पहुंचा दी और कहा, आप अहमद अली को रोकते क्यों नहीं? उन्होंने आपके खानदान को जलील करके रख दिया। ज़हुरुल हसन ने एक बार फिर अपने भतीजे की खबर ले डाली, तुम अपने खानदान को क्यों जलील करते फिर रहे हो? अहमद अली ने जवाब दिया, मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ और आप खानदान का नाम लेते हैं। ज़हुरुल हसन ने गुस्से में कहा, इस जलील काम को तुम मेहनत मजदूरी कह रहे हो? सुबहान अल्लाह, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। आपने जवाब दिया, जिस दिन हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुझे मना कर देंगे, मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। ज़हुरुल हसन ने पूछा कि तुम हर बार हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्यों लेते हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझको ये हुक्म दिया गया है और मैं उस हुक्म की तामील में ये सब करता हूँ। ज़हुरुल हसन ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार की। अब इस शहर, इस जगह ये मामूल हो गया था कि वहाँ जहाँ कहीं भी कोई तकरीब होती, अहमद अली को 4 टके देकर हाल खिलवाया जाता। एक दिन एक अमीरजादे की शादी में भी आपको बुलवाया गया। आपने उस बात करने वाले से पूछा, मेरी उजरत 4 टके लाए हो? उसने जवाब दिया, आप 4 टकों की बात करते हैं तो आपको हर हाल में मिल जाएंगे। आप उसके साथ हो लिए और कहा, अगर ये बात है तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा और फिर अपने साथ ही आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। ऐसा लगा जैसे आप बहक रहे हो। आप दूल्हा के घर पहुंच गए और अपने 4 टके लेकर दूल्हा के पास ही हाल खेलने लगे। हाल खेलने के दौरान चंद लड़कों ने आपसे छेड़छाड़ की। आपने उनको डांट दिया, लड़कों क्यों सताते हो? एक मैं ही रह गया हूँ क्या परेशान करने के लिए? दूल्हा के घर वालों ने माफी चाही। दूल्हा ने भी दूसरों की देखा देखी आपसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। आपने दूल्हा को मना किया, देख तू अपनी जगह शर्माए शर्माया बैठा रहे, तेरी हरकतें मेरी समझ से बालातर हैं। दूल्हा ने अजरा शरारत आपके पेट में चुटकी ली। आपने गुस्से में दूल्हा को झिड़क दिया, ये क्या लोंडियों जैसी हरकतें कर रहा है तू? क्या लड़की बनने का शौक है तुझको? दूल्हा के वजूद में कोई तब्दीली आ गई। दूल्हा से दुल्हन बन गया। वो सुकड़ सिमट कर बैठ गया। उसके पास ही उसका दोस्त बैठा था। उससे आहिस्ता से कहा, मेरी माँ को बुलवा दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। दोस्त ने पूछा, माँ को क्यों, बाप को क्यों नहीं? दूल्हा ने जवाब दिया, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। दोस्त ने कहा, माँ को इस मर्दाने में क्यों बुलाया जाए, तुम खुद उनके पास चले चलो। दूल्हा ने जवाब दिया, चलो यही सही, मुझको माँ के पास ले चलो। दोस्त दूल्हा को पकड़कर अंदर ले जाने लगा तो एक तहलका सा मच गया। लोगों ने पूछा, ये दूल्हा कहाँ जा रहा है? दोस्त ने जवाब दिया, दूल्हा की तबीयत खराब हो रही है, ये अपनी माँ के पास जा रहा है। सुनने वाले हैरान थे कि अगर दूल्हा की तबीयत खराब है तो उसको हकीम के पास जाना चाहिए, माँ के पास जाकर क्या करेगा? बाप भी दौड़ा दौड़ा आया और बेटे से पूछा, क्या तकलीफ है साहिबजादे, मुझे कुछ तो बता। दूल्हा ने कहा, बाबा जान, आप भी मेरे साथ आ जाएं ताकि मैं आपको भी अपनी तकलीफ से खबरदार करूं। बाप भी परेशान हो गया कि वो आखिर क्या तकलीफ है जो बेटा माँ के सामने बयान करना चाहता है। दूल्हा, उसका बाप और दूल्हा का दोस्त, ये तीनों माँ के पास पहुंच गए। माँ को दूल्हा की बीमारी की खबर पहले ही मिल चुकी थी। दूल्हा जैसे ही पास पहुंचा, माँ ने उसकी बलाएं ली और पूछा, बेटा क्या हो गया तुझको, अब कैसी तबीयत है तेरी? दूल्हा ने माँ के शाने पर हाथ रख दिया, अपना सर भी, और फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने घबरा के पूछा, बेटे सच सच बता कि तू परेशान क्यों है, बात क्या है? दूल्हा ने जवाब दिया, माँ मैं लड़की बन चुका हूँ, अब लड़का नहीं रहा। माँ ने लम्हा भर के लिए सोचा कि शायद बेटे का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। पूछा, ये तू क्या बक रहा है? दूल्हा ने जवाब दिया, माँ अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पूरे जिस्म को देखें, अब मैं लड़का नहीं रहा। माँ ने बेटे का जायजा लिया तो अपना सर पीट लिया। ये क्या हो गया, क्यों और कैसे हो गया? बाप ने ये खबर सुनी तो वो भी परेशान हो गया, दोस्त भी हैरान। बाप ने पूछा, ये किस तरह हो गया? बेटे ने जवाब दिया, अहमद अली हाल खेल रहे थे, सब उनसे हंसी मजाक कर रहे थे, मैंने भी चुटकी काट ली और मजाक किया, उस पर उन्होंने मुझे लड़की कह दिया और मुझ में ये तब्दीली आती चली गई। बाप ने बाहर निकलकर बारातियों में अहमद अली को तलाश किया लेकिन वो जा चुके थे। बाप ने बावजह मजबूरी बारातियों के सामने ऐलान किया, साहिबान
दुल्हा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए रस्म फिलहाल मुलतवी की जा रही है। खानदान के एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया अहमद अली को बुलवाया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो अपने मरीज को अच्छा करें। लड़के के बाप ने कहा अगर वो ना माने तो। बुजुर्ग ने जवाब दिया तब फिर सैयद जहूर हसन से बात की जाए, क्योंकि वो अहमद अली के ताया भी हैं और उनके एक तरह से बाप भी। ये बात तय पा गई तो ये लोग वफ्द की शक्ल में जहूर हसन के पास गए और उनसे पूरा वाक़या बयान करके इस्तदा की कि दूल्हा को साबका असल सूरत में लाया जाए। सैयद जहूर हसन ने पूछा ये कब हुआ और क्या आप लोगों को यकीन है कि अहमद अली ही ने ऐसा किया है? दूल्हा के बाप ने कहा हम लोगों को यकीन है कि ये सब कुछ अहमद अली ने ही किया है। अहमद अली को उन सब के सामने बुलाया गया और सैयद जहूर हसन ने कहा अहमद अली ये लोग क्या कह रहे हैं? अहमद अली ने सर झुका लिया। मैंने जो कुछ किया ठीक किया। उनके बेटे ने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, मुझे गुस्सा आ गया। दूल्हा के बाप ने खुशामद की अब आप इस पर और हम सब पर रहम फरमाएं। मेरे बेटे की जरा सी ज्यादती की इतनी बड़ी सजा। सैयद जहूर हसन ने सिफारिश की जो कुछ हुआ उस पर खाक डालो और उनके बेटे को दोबारा पिछली हालत पर ले आओ। अहमद अली ने जवाब दिया ये मुश्किल काम है। वो कैफियत जिसमें मैंने इसे लड़की बनाया था दोबारा किस तरह तारी होगी? वफ्द के एक बुजुर्ग ने कहा मियाँ अहमद अली, हमने तुम्हारे मर्तबे और मकाम को जान लिया, अब हम पर रहम करो। सैयद जहूर हसन ने तजवीज़ पेश की आप लोग जाएं, लड़के को दोबारा दूल्हा बनाएं, लोगों को जमा करें। अहमद अली दोबारा हाल खेलेगा और आपका बेटा इसी तरह चुटकी भरेगा और अहमद अली उसके हक में दुआया कलिमात अदा करेगा। जब यही बातें अहमद अली से की गईं तो उन्होंने जवाब दिया आप लोग जो चाहें करें, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि उस वक्त मेरी ज़बान से क्या निकलेगा। ज़हूर हसन ने ज़रा सख्ती की कि तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुमको उनके बेटे को दुरुस्त करना होगा। अहमद अली ने नहायत संजीदगी और अदब से अर्ज़ किया आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने जिन कैफियत में दूल्हा से वो सब कहा था वो इख्तियारी हालत नहीं थी। इसी तरह जब मुझ पर कैफियत तारी होगी तो उस वक्त मैं अपने इख्तियार में नहीं रहूँगा, इसलिए मैं कोई वादा किस तरह कर सकता हूँ? ज़हूर हसन ने दूल्हा के बाप से कहा मैंने जो कुछ कहा है आप वही करें, मैं अहमद अली के साथ आ रहा हूँ। ये लोग वापस चले गए और एक बार फिर शादी का एहतमाम किया गया। दूल्हा को उसके दोस्त के साथ उसी जगह बिठा दिया गया। सैयद ज़हूर हसन अहमद अली के साथ वहाँ पहुँच गए। दूल्हा के बाप ने अहमद अली से कहा क्यों मियाँ अहमद अली हाल खेलोगे? अहमद अली पर वही कैफियत तारी हो चुकी थी। जवाब दिया हाँ खेलूंगा, 4 टके दो, हाल खेलूंगा। उनको 4 टके दे दिए गए और अहमद अली पर कैफियत तारी हो गई। सैयद ज़हूर हसन ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अहमद अली हाल खेलते हुए दूल्हा के पास गए तो दूल्हा ने उनके पेट में चुटकी भरी और अहमद अली ने हालत वारफगी में कहा ए लोंडे क्या करता है? इस फुकरे ने सबको बाग बाग कर दिया। लड़के का बाप चीखा काम हो गया, बात बन गई। सैयद ज़हूर हसन बहुत खुश हुए। ये तमाशा देख रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि अहमद अली को इतना बुलंद मकाम हासिल हो चुका है। अहमद अली कुछ देर हाल खेलते रहे और जब ज़रा होश में आए तो अपने ताया से कहा आइए घर चलें। सैयद ज़हूर हसन उनके साथ घर चल दिए। रास्ते में ताया ने कहा अहमद अली मुझको नहीं मालूम था कि तुझको अल्लाह ने ये मकाम अता किया है। अहमद अली ने पूछा क्या दूल्हा ठीक हो गया? सैयद ज़हूर हसन ने जवाब दिया हाँ वो ठीक हो गया। अहमद अली ने कहा ये मेरा आखिरी हाल का खेल था, अब मैं ये खेल कभी भी नहीं खेलूंगा। ज़हूर हसन ने मुआज़रत की लाइल्मी में मैंने तेरा हमेशा दिल दुखाया, अब मैं तुझको किसी बात से मना नहीं करूँगा, तू चाहे तो हाल खेल सकता है। अहमद अली ने जवाब दिया अब इस खेल में मज़ा नहीं रहा, जो काम पर्दों में हो रहा था अब वो फाश हो चुका है, इसलिए हाल का खेल अब बंद, अब मैं कभी भी हाल नहीं खेलूंगा। जो कल तक आपका मजाक उड़ाते थे और तमस्खुर किया करते थे, आज आपसे इज्जत व एहतराम से पेश आ रहे थे। एक दिन आपने अपना सामान समेटा और कहीं जाने की तैयारी करने लगे। सैयद ज़हूर हसन ने पूछा ये क्या हो रहा है? अहमद अली ने निहायत अफसोस से जवाब दिया अब मैं इस हवा में नहीं रहूँगा। ज़हूर हसन ने पूछा क्यों, इसकी कोई वजह, कोई ख़ास वजह? आपने जवाब दिया उसकी एक ख़ास वजह है। ज़हूर हसन ने पूछा वो क्या ख़ास वजह है? अहमद अली ने जवाब दिया जब तक लोग मुझसे वाकिफ़ नहीं थे मेरा अदब नहीं करते थे, लेकिन अब वो मेरा एहतराम करते हैं, मेरा अदब करते हैं और मुझको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं।
ظہور حسن کو دکھ تو ہوا لیکن انہیں روک نہیں سکی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کمالیہ 6 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔